Hello and greetings to all. Before starting, please go through the disclaimer. So today we would be discussing about Fibonacci extensions. Fine, आपके ऊपर आई बटन में आ जाएगा Fibonacci retracements. तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा. इसके बाद Fibonacci extension देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी. Fibonacci extensions are used in trading and investing to identify potential price targets beyond the traditional Fibonacci retracement levels. फाइन. तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है, वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जहां पर वो बताया जाता है कि प्राइसेस कितने रिट्रेस किए हैं. फाइन. और फिबोनाची एक्सटेंशंस क्या है? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्राइस टारगेट्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स. ये सब आपको चार्ट्स में मैं प्रॉपरली बताऊंगा. To calculate Fibonacci extensions, traders first identify a significant price swing in the market, usually by connecting the high and low point of a trend using a Fibonacci retracement tool. Once the retracement tools have been identified, traders can then use the Fibonacci extension tools to project potential price targets beyond those levels. अगर आपको ये फिबोनाची एक्सटेंशंस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी तो आप इसके अंदर आराम से एलियट वेव थ्योरी के अंदर कैसे प्राइस प्रोजेक्शंस कर सकते हैं वो आप सीख जाएंगे. सो बी वेरी अटेंटिव. Fibonacci extensions are calculated by extending the retracement levels beyond 100%. Typically 127.2%, 161.8 and 261.8. उसके बाद 361.8 भी होता है और 423.6% भी होता है of the price movement. Traders believe that these levels represent potential areas of support or resistance where the price may reverse or consolidate. Using the extension, traders can set price targets for profit taking or stop loss orders based on the potential रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स. तो अभी ये आपको थ्योरी है, अब आगे सारा प्रैक्टिकल होने वाला है. तो अब देखिए यहां पर हमने इस पॉइंट पे हमने कर्सर को प्लेस किया और इस पॉइंट पर कर्सर को प्लेस किया, जो कि मैं आपको भी प्रैक्टिकली भी बताऊंगा. अगर ये इन दोनों के बीच में है तो ये रिट्रेसमेंट्स है कि कितना प्राइस रिट्रेस कर सकता है. और अगर हमें एक्सटेंशन लेनी है तो ये एक्सटेंशन के रेट आ गए 1.236, 1.382, 1.618, 2.236, 2.618. फाइन. तो रिट्रेसमेंट होता है 0 और 1 के बीच में और एक्सटेंशन होता है 1 के ऊपर. सो द फिबोनाची एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज. ट्रेंड कंटिन्यूशन स्ट्रेटेजी. सॉरी. A trader can use Fibonacci extension to identify potential resistance levels beyond the traditional retracement level and set a profit-taking order at these levels. Trend reversal strategies. If a price is trending downwards, a trader can use Fibonacci extension to identify potential support levels beyond the traditional retracement levels. Confluence strategy. Confluence का मतलब क्या होता है? Can use Fibonacci extensions in conjunction with other technical indicators to identify areas of confluence. तो हमें सिर्फ एक्सटेंशन पर ही डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें उसके साथ और भी इंडिकेटर्स लगा सकते हैं जैसे RSI, MACD, जिससे हमें उसके बीच में कॉन्फ्लुएंस पता चले. डाइवर्जन स्ट्रेटेजी. इफ द प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज while the RSI is making lower highs, that could be a potential divergence and signal to set a short position. Limitations क्या है इसकी? Fibonacci extensions have their limitation and should be used in conjunction with other indicators and analysis techniques. Traders carefully consider the pros and cons of using Fibonacci extension and develop a comprehensive trading strategy. Overall, Fibonacci extensions are a valuable tool in the trader's arsenal and can enhance their ability to identify profitable trading opportunities and manage risk effectively. So now come to the practical parts. अब ये Fibonacci हम कैसे करते हैं? ये Fibonacci extension का एग्जाम्पल है. दिस इज बुलिश एग्जाम्पल. अब ये 1 लिया, 1 पे हमने कर्सर प्लेस किया, फिर 2 पे कर्सर प्लेस किया और यहां पर हमने इसको ड्रैग कर दिया. मैं अभी आपको इसको चार्ट में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. यहां पर पॉइंट को रखा, यहां पर पॉइंट को रखा और जहां तक इसको ड्रैग कर दिया तो ये हमारे पास एक्सटेंशन लेवल आ गए 100%, 138.2, 161.8. फाइन. तो यानी कि मार्केट हमारी यहां तक जा सकती है, पर हमें इसको कुछ और इंडिकेटर्स के साथ रखकर प्राइसेस को प्रोजेक्ट करना है. अगर बियरिश एग्जांपल है
तो यहाँ पर कर्सर रखा, फिर यहाँ कर्सर रखा, फिर थर्ड में कर्सर रखा, तो इससे हमें ये प्रोजेक्शन सारी आ जाएंगी 100%, 138.2, 161.8। फाइन। सो नाउ लेट्स गेट टू द चार्ट्स। अब हम चार्ट्स में चलते हैं समझने के लिए कि कैसे ये एक्सटेंशंस और रिट्रेसमेंट्स काम करती है। देखिए, एक तो ये एक्सटेंशन इस हिसाब से काम करती है। अब हमें यहाँ पर प्रोजेक्शन करनी है कि ये प्राइसेस कहाँ तक जा सकता है। ये आपके सामने IRFC का चार्ट है। यहाँ पर इसमें राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, या इसको बेसिंग भी कह सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से प्रिडिक्ट करना है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो हमने क्या किया, फिबोनाची एक्सटेंशन लिया। पहला कर्सर हमने यहाँ रखा, प्लीज सी वेरी केयरफुली। पहला कर्सर हमने यहाँ रखा, फिर हमने कर्सर यहाँ पर क्लिक किया और इसको वापस यहाँ पर ले आए, तो ये हमारे पास रेट्स आ गए। अब हमें रिट्रेसमेंट तो इसके अंदर चाहिए नहीं, हमें प्रोजेक्शन करना है, एक्सटेंशन देखना है। तो 1 कर लिया हमने, 1.618 कर लिया, 2.618, 3.618, 2 कर लिया, 2.272, तो हमने ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे आपके सामने ये सारी प्रोजेक्शंस आ गई हैं। ये एक्चुअली 4.2360 तक भी जाता है, ये देखिए 4.236 तक। तो अब हमने यहाँ पर अगर इसको रख लिया, तो हम इसको अब आगे प्रॉपरली इसको गवर्न करेंगे कि कैसे फिबोनाची एक्सटेंशन हमें हेल्प करता है। पर सिर्फ यही नहीं कि हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि ये 1.618 तक जा सकता है, हो सकता है ये 2.618 तक भी जा सकता हो। तो हमें इसके साथ और भी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं फॉर कंजंक्शन। फाइन। अगर आप प्राइस एक्शन में बिलीव करते हैं तो आप प्राइस एक्शन के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ फिबोनाची एक्सटेंशन वर्क। अब हमें अगर यहाँ का प्रोजेक्ट करना है, तो एक लेवल और है प्रोजेक्ट करने का। हमने कर्सर को यहाँ रखा, ये एलियट वेव में यूज होता है ये वाला। यहाँ पर एक क्लिक किया और हमने एक यहाँ क्लिक किया और यहाँ से क्लिक किया हमने। फाइन। तो यानी कि 0, 1, 2 3 लेवल पे हमें क्लिक करना पड़ता है। अब ये इसने प्रोजेक्शंस बना दी कि इसका जो रेट है, जो यहां से यहां तक है, वो 1 है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये यहां से यहां तक अगर हमने ली और इसको हमने यहां से प्रोजेक्ट कर दिया, तो देखिए ये यहां तक आ गया 1। इसका मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो यहां से स्टार्ट होती है एक्सटेंशन के लिए। अगर वो 1 टाइम बढ़ती है या 100 टाइम्स बढ़ती है, तो ये यहां तक आएगी। 1.618 टाइम्स बढ़ेगी तो 51 तक जाएगी। 200 टाइम्स बढ़ेगी या ट्वाइस बढ़ेगी तो यहाँ तक 2.272, 2.618, 3.618, 4.236। तो इस तरीके से फिबोनाची एक्सटेंशन कह लीजिए या फिबोनाची प्रोजेक्शन कह लीजिए, इस तरीके से ये काम करता है। अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होता तो इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, और इससे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी वीडियो देखिएगा। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मेरी अगली जो वीडियो होगी वो एलियट वेव के ऊपर है, जहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स यूज किया गया है। सो थैंक्स अ लॉट। दिस इज ट्रेड विद सिंप्लिसिटी चैनल। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।